નમસ્તે દર્શક મિત્રો, અરવલ્લી સમાચાર તમારો વિસ્તાર તમારી વાત તરફથી હું ડૉક્ટર મિહિર જોશી અરવલ્લી સમાચાર પરિવાર તરફથી એક વિશેષ કાર્યક્રમ કે જે આરોગ્યલક્ષી છે તે અમે આપની સમક્ષ રજૂ કરવા જઈ રહ્યા છે, જેમાં અરવલ્લી જિલ્લાની એકમાત્ર 100 બેડની હોસ્પિટલના નિષ્ણાત તબીબ ડૉક્ટર પરમેશ્વર સર કે જે ક્રિટિકલ કેર એક્સપર્ટ પણ છે અને સાથે સાથે એનેસ્થેસિયોલોજિસ્ટ તરીકે પણ એમ્સ હોસ્પિટલ જોડે જોડાયેલા છે. તે આપને COVID-20 એટલે કે મ્યુકોરમાઇકોસિસ નામની જે અત્યારે બીમારી છેલ્લા 1 મહિનાથી જોવા મળી રહી છે તેના વિશે આપને માહિતગાર કરશે. ટૂંકમાં મ્યુકોરમાઇકોસિસ એક એવી બીમારી છે કે જે અગાઉના સમયની અંદર કે જ્યારે કોરોનાની બીમારી નથી એ વખતે ભાગ્યે જ 1 કે 2 કેસ જોવા મળતા હતા. છેલ્લા કેટલાય સમયથી એટલે કે વાત કરીએ તો દિવસોમાં કે 60થી 70 દિવસથી મ્યુકોરમાઇકોસિસ નામની બીમારી એ પોતાનું માથું ઉંચક્યું છે કે જેની અંદર શરૂઆત જે ખરી એ કોરોનાના જેટલા પણ દર્દીઓ છે એમાં આંખ અને નાકના માધ્યમથી એ શરીરમાં પ્રવેશતી હોય છે અને નાકનું હાડકું જે મસ્તિષ્ક સુધી જતું હોય છે તેની અંદર એ પોતાનો લક્ષણો જે ખરા એ બતાવતું હોય છે. મ્યુકોરમાઇકોસિસની બીમારીની અંદર અમુક વખતે જો રોગ ગંભીર થાય તો એની અંદર દર્દી જે ખરું એ પોતાનો જીવ પણ ગુમાવે છે. દર્દી જે ખરું એ અંધાપા સુધી જાય છે. બીમારીની અંદર જીવલેણ રોગ કહી શકીએ, કારણ કે COVID-19ની અંદર મૃત્યુનો દર જે ખરો એ પર 100 પેશન્ટ કરતાં COVID-20ની અંદર એટલે કે મ્યુકોરમાઇકોસિસની અંદર એ દર જે ખરો એ 50% સુધીનો અત્યાર સુધીમાં વિશ્વમાં નોંધાયેલો છે. ગુજરાતમાં પણ છેલ્લા કેટલાય દિવસોથી વાત કરીએ તો છેલ્લા 2 મહિનાથી મ્યુકોરમાઇકોસિસના દર્દીઓ આપણને જોવા મળી રહ્યા છે. સદનસીબે હજુ એટલા પેશન્ટ્સ જે ખરા એ ગવર્મેન્ટના ચોપડે નોંધાયેલા નથી, પણ અમદાવાદ સિવિલમાં ગોત્રી મેડિકલ કોલેજ વડોદરાની અંદર પણ આ નામની બીમારીના રોગો સાથેના દર્દીઓ આપણને જોવા મળ્યા છે કે જેમાં મૃત્યુનો દર જે ખરો એ 20% સુધી આપણને જોવા માટે મળેલો છે. જે પણ દર્દીઓ કે જેમને કોરોના પણ છે અને સાથે સાથે ડાયાબિટીસ, બ્લડ પ્રેશર, બ્લડ કેન્સર અથવા તો ઓર્ગન ટ્રાન્સપ્લાન્ટ કરેલું હોય અને જેની રોગપ્રતિકારક શક્તિ જે ખરી એ ઓછી હોય એ દર્દીઓને મ્યુકોરમાઇકોસિસ જે ખરો એ થવાના ચોક્કસ લક્ષણો જે ખરા એ એમની અંદર આપણને જોવા માટે મળી રહ્યા છે. આ જ રોગ વિશે આપણે વધુ વિગતો તબીબી નિષ્ણાત એવા ડૉક્ટર પરમેશ્વર સર સાથે જાણીશું. डॉक्टर परमेश्वर सर, ये जो रोग है वो एक्चुअली उसका जो ओरिजिन हम बोल सकते हैं वो कैसे होता है? एक्चुअली म्यूकोरमाइकोसिस जो है ये एक तरह के फंगल इन्फेक्शन है. ये पहले से ऐसा नहीं है कि कोरोना के बाद ये म्यूकोरमाइकोसिस आया है. ये बहुत पुराना डिसीज़ है. यूजुअली जब बॉडी का इम्यूनिटी लेवल कम हो जाता है, एक फंगल इन्फेक्शन है. और फंगल इन्फेक्शन यूजुअली जब बॉडी का इम्यूनिटी कम हो जाता है तभी उसका जो सिम्टम्स है वो आ जाते हैं. वैसे ही एक कोरोना की बीमारी में स्पेशली पहले से आता था डायबिटीज़, कैंसर और यूजुअली जो ट्रांसप्लांट हो जाते हैं उनको मतलब इम्यूनिटी कम करने के लिए दवाई दिया जाता है. उनमें ये दिखाई देता है बहुतर. और स्पेशली ये एड्स वगैरह रहे तो जहाँ इम्यूनिटी कम हो जाता है, और ओल्ड एज जहाँ इम्यूनिटी कम हो जाता है, और क्रोनिक इलनेस जो भी ट्यूबरकुलोसिस हो या न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज जहाँ हो, जो भी दर्द है जो इम्यूनिटी को कम कर देता है वहाँ यूजुअली ये फंगल इन्फेक्शन दिखाई देती है. उसमें एक है म्यूकोरमाइकोसिस. एक्चुअली म्यूकोरमाइकोसिस ये 3 तरह के होते हैं. एक होता है नेज़ोसेरेब्रल, और दूसरा होता है पल्मोनरी म्यूकोरमाइकोसिस, और तीसरा होता है गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल. जो नेज़ोसेरेब्रल होता है, एक्चुअली नेज़ोसेरेब्रल में यूजुअली वो नाक और ब्रेन को अफेक्ट करता है, और उसके साथ जो भी है सराउंडिंग टिश्यूज़ वहाँ अफेक्ट होता है. यूजुअली ऐसे पेशेंट क्या करते हैं, यूजुअली जो
इम्यूनिटी कम होती है। ये कोरोना एक बहाना है उसके लिए, इम्यूनिटी कम करने के लिए। और कोरोना भी वैसे जहाँ पे सीरियसनेस होता है वो भी इम्यूनिटी कम लेवल जिनमें पेशेंट में रहता है, जैसे वो कैंसर पेशेंट हो, हार्ट के पेशेंट हो, डायबिटीज़ के पेशेंट हो, या सीवियर हाइपरटेंशन के पेशेंट हो, ऐसे पेशेंट में कोरोना होता है। और ये म्यूकोरमाइकोसिस में एक अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन है उसमें। ये यूजुअली ऐसे होता है। सर उसके अलावा आपने और दो और उसके प्रकार आपने समझाए हमको कि वो पल्मोनरी भी रहता है, तो उसमें भी जो सिम्टम्स रहते हैं उसके वो किस हिसाब से हमको पता चलता है? अभी क्योंकि गुजरात में कैसा हुआ है कि जो नेजो सेरेब्रल जो है वो सभी केसेस जो है वो बाहर आ रहे हैं, लेकिन वो पल्मोनरी वाले जो केसेस है वो अभी बाहर नहीं आ रहे हैं। तो वो सिम्टम्स के हिसाब से हमको कैसे पता चलेगा कि ये जो पेशेंट है उसको ये प्रकार यानी कि ये हुआ है, ये वाला डिसीज हुआ है? कैसा है, जो पहले नेज़ोसेरेब्रल जो है यूजुअली सिम्टमेटिक जल्दी हो जाता है पेशेंट, क्योंकि नेज़ोसेरेब्रल इसमें पहले से वो कॉमन कोल्ड की तरह रहता है, बाद में नेज़ल स्वेलिंग आ जाता है, एक तरफ आँख को अफेक्ट किया तो वहाँ ब्लाइंडनेस होने के चांसेस रहते हैं, विजन चेंज होने के चांसेस रहते हैं। और वैसे ही वो ब्रेन को स्प्रेड हो गए तो यूजुअली सीजर्स आते हैं, जो खींच आती है, वो आ जाते हैं, तो पेशेंट जल्दी ही सिम्टमेटिक हो जाते हैं। और वैसे गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल या पल्मरी रहता है, पल्मर में नॉर्मल जो रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन, लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन बोलते हैं हम, जहाँ फेफड़े ख़राब होने के चांसेस रहते हैं। यूजुअली फंगल इन्फेक्शन एक लंग में एक जगह लेके एक बॉल की तरह बना देते हैं। हाँ, यूजुअली डायबिटिक पेशेंट में पहले से ये दिखाई देता था, लेकिन आजकल ये कोरोना के पेशेंट जो इम्यूनिटी लेवल ऑलरेडी कम है उनमें ये ज़्यादातर दिखाई देगा। सर दूसरा ये और भी जानना था आपसे कि जैसे कि अभी कोरोना के केसेस हमने गुजरात में भी देखे हैं, ओवरऑल ग्लोबल में भी थे और गुजरात में भी है, और आपके हिसाब से यानी कि मेडिकल बुक्स के हिसाब से जो ये नया कोविड-20 है वो कोरोना के जो प्रीवियसली जिसको अफेक्ट हुआ है उनके चांसेस बढ़ा देता है, तो उनको कैसे कैसे प्रिकॉशंस लेने चाहिए, या तो फिर अलार्मिंग साइंस कौन कौन से है कि उसमें जल्दी से ट्रीटमेंट वो लोग ले तो उनको डायग्नोसिस के बाद जल्दी ट्रीटमेंट ले तो ये और फर्दर स्प्रेड होने से बच सकते हैं हम उसमें से? जो नया कोरोना वायरस है, मतलब जो स्ट्रेन है, एक्चुअली स्ट्रेन है, इसको हम एक्चुअली SARS-CoV-2 बोलते हैं। एक्चुअली एक कोरोना वायरस का एक स्ट्रेन है, इनमें म्यूटेशन हुआ है। जो पहले का वायरस था ऑलमोस्ट 17 जगह पे इनका जो जीन में है वो म्यूटेशन होके ये वायरस आया है। अभी इसके बारे में पूरा स्टडी हुआ नहीं है, क्योंकि ये रिसेंटली इन्वेस्टिगेट हुआ है, तो उसके इसीलिए उसको बोलते हैं अंडर इन्वेस्टिगेशन ही बोलते हैं उसको, वो वायरस को। जो जीनोमिक चेंजिंग है, यूजुअली कैसा है, हम कोरोना को RT-PCR की वजह से हम उसको पहचान सकते हैं, लेकिन इधर प्रॉब्लम क्या है, RT-PCR तो थोड़ी बहुत यूजुअली हेल्प होगा, लेकिन उसके लिए जीन सीक्वेंसिंग करना पड़ता है। हाँ, क्योंकि वो म्यूटेटेड जीन्स रहते हैं और इसका सीक्वेंसिंग उसका सीक्वेंसिंग कंपेयर करके इसको जीन सीक्वेंसिंग जो मेथड बोलते हैं उससे फाइंड आउट कर सकते हैं। इसीलिए मतलब फाइंड आउट करना एग्जैक्टली थोड़ा डिफिकल्ट होगा ये वायरस के लिए। उस हिसाब से सर एक और चीज़ जाननी थी कि जैसे आपने बताया कि ये रेयर इन्वेस्टिगेशंस जो है वो आपने बताए जेनेटिकल जो रहेंगे उसमें, तो उसमें खर्चा भी बढ़ेगा, तो हमारे सामने यानी कि गवर्नमेंट के सामने उसके लिए काफ़ी सारे हम बोल सकते हैं कि उसको कॉम्बैट करने के लिए काफ़ी सारी चैलेंजेस जो है वो रहेगी। तो एज ए डॉक्टर आप क्या क्या देखते हैं कि उसमें हम लोग कितनी जल्दी ट्रीटमेंट या कितना अर्ली डायग्नोसिस करते हैं तो इसमें हमको बेहतर जो मोर्टालिटी रेट है वो हम कम कर सकते हैं? यूजुअली कोरोना हो या कोविड-19 हो या ये नया ब्रिटेन कोरोना जो बोलते हैं SARS-CoV-2, इनिशियल सिम्टम्स कॉमन कोल्ड की तरह रहते हैं। और एक टाइम आता है जहाँ एक्चुअली बॉडी में साइटोकाइन स्टॉर्मिंग, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट पीरियड रहता है। इन्फेक्शन के होने बाद बॉडी का ये जो रिस्पॉन्स आता है वहाँ साइटोकाइंस बॉडी में इम्यूनिटी की तरह रिलीज हो जाता है। वो स्टॉर्म बहुत जोर से, मतलब जितना चाहिए उससे ज़्यादा रिलीज हो जाते हैं, ताकि वो
बॉडी टिश्यूज़ को डैमेज कर देते हैं। वो पीरियड सबसे बहुत इंपॉर्टेंट रहता है कोरोना के में, या पुराना कोरोना हो या ब्रिटेन जो नया वाला आया हो। उस टाइम एक्चुअली जो इन्फ्लेमेशन कम करने की दवाई है, डॉक्टर्स को जल्दी कंसल्ट किए तो वो दवाई दिए तो एक्चुअली जो इफ़ेक्ट रहता है, मॉर्टेलिटी भी कम हो जाता है, पेशेंट का डिसीज़ का सीवियरिटी भी कम हो जाता है और पेशेंट भी कंफर्टेबल रह जाता है, कॉम्प्लिकेशंस कम हो जाते हैं एक्चुअली। दूसरे लैंग्वेज में हम ऐसा कह सकते हैं, लेमैन की लैंग्वेज में, कि जितना आपको अगर कुछ भी सिम्टम्स दिखते हैं और जितना अर्ली डायग्नोस करते हैं कोविड-19 के लिए भी या तो फिर ये नया आया हुआ उसका स्टेन है उसके लिए भी, तो हम लोग म्यूकोरमाइकोसिस से पहले उसको ट्रीट जो है वो कर सकते हैं, यानी कि हम उससे अपनी मॉर्टालिटी का जो रेट है उसको हम कम कर सकते हैं। जरूर वो एक यानी कि इसमें अर्ली डायग्नोसिस बहुत इम्पोर्टेंट है। वो कोविड-19 के लिए है या तो फिर नया स्टेन जो आया हुआ है उसके लिए भी। अभी सर पोस्ट कोविड स्टेज के लिए जिसको एक बार कोरोना हुआ है, हमने गुजरात में कई सारे डॉक्टर्स भी पाए हैं और पेशेंट्स भी पाए हैं कि जिसमें हमने एक बार अगर उसको कोरोना हुआ है वो रिपीट भी हो रहा है, तो और इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज जो स्टेट है पेशेंट्स का उसकी वजह से उनको शायद होता है, या तो फिर वो प्रिकॉशंस नहीं रखते उसके लिए होता है। तो ये जो डिसीज है नया म्यूकोरमाइकोसिस, उसके लिए उनको सेल्फ अवेयरनेस में जो मास्क है, डिस्टेंसिंग है, सैनिटाइजेशन है, उसके अलावा कोई और चीज़ है कि जिसको हम लोग जो है वो पब्लिक के लिए प्रिवेंशन के तौर पे यूज़ कर सकते हैं? यूजुअली कोरोना और जो रिलेटेड ऑपर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन है उसके लिए तो पर्सनल हाइजीन मतलब पर्सनल जो प्रोटेक्शन है बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। जैसे आपने बोला वो सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क पहनना और फ्रीक्वेंट हैंड वॉशिंग बोलते हैं, वो बहुत ज़रूरी है। उसके अलावा म्यूकोरमाइकोसिस इम्यूनिटी जहाँ पे कम रहता है वहाँ होता है, और दो फर्स्ट इम्पॉर्टेंस है इम्यूनिटी को बढ़ाना रहता है, बॉडी इम्यूनिटी, खुद की इम्यूनिटी। उसके लिए हमको रेगुलर अच्छा वाला न्यूट्रिशनल खाना बहुत ज़रूरी है। हाँ, उसके साथ है मिनिमल एक्सरसाइज, जो बोलते हैं मिनिमम हफ्ते में 150 मिनट्स तो चाहिए हफ्ते में, मतलब 5 दिन आप रोज़ 30 मिनट एक्सरसाइज भी करेंगे ना, वो बहुत बॉडी के लिए अच्छा रहता है ताकि इम्यूनिटी लेवल बढ़ाए। और स्ट्रेस को बहुत कम करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि स्ट्रेस है जो रेगुलर जो काम का स्ट्रेस हो, घर का स्ट्रेस हो, जो भी हो, वो इम्यूनिटी लेवल को कम कर देता है। उसके साथ है जो सहयोग करने वाला, इम्यूनिटी कम करने वाला जो आदतें हैं उनको कम करना जरूरी है। यानी कि कोई भी अगर आपको एडिक्शन है तो उसको आपको लोअर डाउन में ले जाना चाहिए। तो इससे हमको ये ગુજરાતીમાં વાત કરીએ તો આની અંદરથી આપણને એટલું જાણવા મળ્યું સાહેબ તરફથી કે અત્યારે જે નવો સ્ટેન આવ્યો છે મ્યુકોરમાઇકોસિસ નામનો, એની અંદર આપણને એટલું જાણવા મળ્યું કે જો આપણે પર્સનલ હાઇજીન પ્રોપર રાખીએ, આપણે ન્યુટ્રિશનલ ડાયટ લઈએ, આપણે પ્રોપર વીકલી જે એક્સરસાઇઝનું જે શેડ્યુલ બનાવેલું હોય એ કરીએ તો એનાથી આપણે 100% સારવાર સુધી પહોંચવું નથી પડતું અને આપણે પ્રોપર આપણો હેલ્થ જે ખરો એ મેન્ટેન કરી શકીએ છીએ। તદુપરાંત આપણને એ પણ જાણવા મળ્યું કે આનાથી ગભરાવાની જરૂરિયાત નથી, પણ સાવચેતીના પગલાં રાખીએ તો આપણે એનાથી 100% બચી શકાય છે। सर उसमें हम और डेप्थ में जाए कि अगर एक पेशेंट है उसको डायग्नोस होता है जेनेटिकली, आपने जैसे बताया डायग्नोस्टिक्स के हिसाब से अगर हुआ है तो उसके जो चांसेस है बचने के, क्योंकि वो पूरा नेजो सेरेब्रल तो अभी हम लोग आइडेंटिफाई कर रहे हैं कि उसमें हो ही रहा है, लेकिन एसोसिएटेड जो वाइटल्स ऑर्गन है उसके ऊपर उसकी क्या इम्पैक्ट होती है? फंगल इन्फेक्शन स्प्रेड हुआ तो यूजुअली कंट्रोल में आना मुश्किल है, लेकिन उसका ट्रीटमेंट तो है। हाँ, फंगल इन्फेक्शन लिए हमारे पास एंटी फंगल जो है, हम एक्चुअली आईवी देने वाले मेडिसिन है वो काम कर लेंगे। लेकिन एक्सटेंसिव डिसीज़ में मुश्किल हो जाता है। अभी ब्रेन को स्प्रेड हुआ तो वहाँ पे जो हम दवाई देते हैं वहाँ पे पहुँच के एक्ट करना बहुत मुश्किल हो जाता है। पल्मनरी म्यूकोरमाइकोसिस भी वैसा ही कंडीशन है, दवाई तो देंगे हम, वहाँ जाके कितना काम करेगा वो बोलना मुश्किल हो जाता है। लेकिन दवाई तो आजकल के जो दवाई है उसके लिए 3-4 दवाई बहुत अच्छे हैं फंगल म्यूकोरमाइकोसिस के लिए। ફરીથી એક વાત આપણે જણાવીએ કે મ્યુકોરમાઇકોસિસથી ગભરાવાની જરૂર નથી, તકેદારીના પગલાં જે ખરા એ આપણે જો રાખીએ તો આ રોગની સામે પણ આપણને જેમ કોરોના 19થી પણ આપણે જે રક્ષણ મેળવી શક્યા છીએ, આ રોગની સામે પણ આપણે લડી શકીએ છીએ અને આપણું જે
નવી જે લાઈફસ્ટાઈલ અપનાવીએ આપણે તો એનાથી આપણે 100% બચી શકીએ છીએ. દર્શક મિત્રો, આ વિશેષ કાર્યક્રમની અંદર અરવલ્લી સમાચાર પરિવાર તરફથી આપ સર્વેનો ખૂબ ખૂબ આભાર કે અમને સાંભળ્યા, અને ડૉક્ટર પરમેશ્વર સર અને એમ્સ પરિવાર તરફનો પણ ખૂબ ખૂબ આભાર કે એમણે અમારી સાથે આવી અને મ્યુકોરમાઇકોસિસ નામની જે વિશ્વની અંદર આવેલી નવી આપત્તિ છે એના વિશે અમને માહિતગાર કર્યા, એમને માર્ગદર્શન પૂરું પાડ્યું, જે અમારા વ્યુઅર્સ ખરા એમને 100% ઉપયોગી થશે અને આ રોગને ફેલાવતો અટકાવવામાં મદદરૂપ થશે, જે આપણે જનહિત માટે યોગ્ય પગલાં લઈ અને કરેલો છે. આભાર. અરવલ્લી સમાચારના સતત અપડેટ માટે સબસ્ક્રાઇબ કરો અમારી YouTube ચેનલ અરવલ્લી સમાચારને. વધુ અપડેટ મેળવવા માટે બેલ આઇકન પર ક્લિક કરો અને જોતા રહો અરવલ્લી સમાચાર, એટલે તમારો વિસ્તાર, તમારી વાત.